چھوٹے سے قصبے کی گلیوں میں ہلکی ہلکی خنکی اتر آئی تھی۔ خزاں کی ہوا درختوں کے پتوں کو سرسراتی ہوئی اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ مسجد کے مینار سے عشاء کی اذان کی صدا بلند ہوئی تو گلیوں میں ایک عجیب سکون سا پھیل گیا۔ ریحان احمد، جو کہ ابھی ابھی شہر سے پڑھائی کے بعد واپس آیا تھا، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ ریحان کی آنکھوں میں ایک انجانی نمی تھی۔ شاید وقت نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ بچپن کے دن جب وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا مریم کو کتابیں تھماتا، ذہن میں جیسے ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ مریم کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کا سکون، اور سب سے بڑھ کر اس کا کہنا، ریحان دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بس قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ ریحان اکثر سوچتا تھا کہ مریم کی باتیں کیوں اس کے دل کو اتنی گہرائی میں چھو جاتی ہیں۔ گھر کے اندر زرینہ بیگم، ریحان کی ماں، قرآن کھولے بیٹھی تھیں۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہ نکلتی۔ وہ ہمیشہ خاموشی میں دعائیں مانگا کرتی تھیں، بیٹے کے لیے، شوہر کے سخت دل کے نرم ہونے کے لیے، اور زندگی کی آسانیوں کے لیے۔ ریحان بیٹا، کھانا کھا لو، ماں نے پکارا تو ریحان اندر آیا۔ دسترخوان پر روٹی اور دال رکھی تھی۔ شمس الدین سخت مزاجی سے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کی نظریں بیٹے پر ٹھہریں مگر لبوں پر کوئی مسکراہٹ نہ آئی۔ شہر جا کر کیا سیکھایا ہے؟ کوئی نوکری ڈھونڈی؟ ریحان خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ باپ کو لمبی وضاحتیں پسند نہیں۔ اب وقت ضائع مت کرو، آدمی کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے۔ شمس الدین نے جملہ پھینکا اور اخبار دوبارہ آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ ریحان کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ وہ بچپن سے ہی باپ کی شفقت کو ترستا رہا تھا۔ زرینہ بیگم نے ریحان کی خاموشی پڑھ لی۔ انہوں نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے آہستہ سے کہا، بیٹا، دل چھوٹا مت کرو، وقت بدلتا ہے، بس دعا مانگتے رہا کرو۔ ریحان نے ماں کی آنکھوں میں وہی سکون دیکھا جو کبھی مریم کی آنکھوں میں محسوس کیا تھا۔ مریم کے گھر میں ہمیشہ روشنی اور خوشبو بسی رہتی۔ فاطمہ بیگم قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں اور آفاق اپنی کتابوں میں گم تھا۔ مریم نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گلی کے اس پار ریحان کے گھر کی کھڑکی روشن تھی۔ دل نے بے اختیار کہا، کاش وہ جانتا ہو کہ میری ہر دعا میں اس کا نام شامل ہے۔ مریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، ریحان کی راہیں آسان کر دے، اس کے دل سے بوجھ ہٹا دے۔ ریحان اکثر رات کو چھت پر جا کر آسمان دیکھتا، ستارے جیسے اس سے بات کرتے۔ کامران اکثر اس سے کہتا، یار ریحان، زندگی اتنی مشکل نہیں، جو چاہو حاصل کرو، مریم پسند ہے تو جا کر سیدھی بات کرو، دنیا بہادر کو سلام کرتی ہے۔ مگر ریحان جانتا تھا کہ اس کا راستہ آسان نہیں۔ باپ کے سخت اصول، مریم کی عزت دار ماں کی نظریں، اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی جھجک۔ کاش دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا، اس نے خود سے کہا۔ ایک دن محلے میں خبر پھیلی کہ مریم کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ ریحان کے کانوں میں یہ بات زہر بن کر اتری۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ زرینہ بیگم نے بیٹے کو روتا ہوا پایا تو دل کٹ گیا۔ ریحان بیٹا، ہمت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ریحان نے ماں کے ہاتھ تھام کر کہا، ماں، کیا دعائیں واقعی سب کچھ بدل سکتی ہیں؟ زرینہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، خاموش دعائیں سب سے طاقتور ہوتی ہیں، تم دیکھنا ایک دن یہ رنگ ضرور لائیں گی۔ مریم کے لیے آئے رشتے کی خبر محلے میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ عورتوں کے ہونٹوں پر سرگوشیاں تھیں، کچھ حسد میں ڈوبی باتیں، کچھ دعائیں۔ فاطمہ بیگم کی آنکھوں میں سکون تھا مگر مریم کے دل پر بوجھ بڑھ گیا۔ اماں، یہ رشتہ کہاں سے آیا ہے؟ مریم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ بیگم نے بیٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، رشتہ شہر کے معزز خاندان سے ہے، لڑکا پڑھے لکھے کاروباری گھرانے کا ہے۔ مریم کے دل پر جیسے پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار ریحان کا چہرہ ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان کبھی زبان سے کچھ نہیں کہے گا مگر دل کی دھڑکنیں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں۔ کامران نے خبر سن کر ریحان کے کمرے میں قدم رکھا۔ یار، اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا ورنہ ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ ریحان خاموش بیٹھا تھا۔ کامران، میں اپنی ماں اور باپ کی عزت کے خلاف نہیں جا سکتا، اور مریم کے گھر والے بھی، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کامران نے جھنجلا کر کہا، تو پھر بیٹھا رہے اور دیکھتا رہے کہ جس لڑکی کو تو خاموش دعاؤں میں مانگتا ہے وہ کسی اور کی ہو جائے۔ یہ جملہ ریحان کے دل کو چھید گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔
रात गए रेहान ने अपनी माँ को नमाज के बाद दुआ मांगते देखा, या अल्लाह मेरे बेटे के नसीब में सुकून लिख दे, उसकी राहों में आसानी पैदा कर दे। रेहान माँ के करीब जाकर बैठ गया और कहा, माँ बस करें, दुआओं से सब बदलता कहाँ है। जरीना बेगम ने कहा, बेटा तूने अपनी माँ की दुआओं की ताकत को नहीं जानता, वक्त आने दो, ये खामोश दुआएं सब कुछ बदल देंगी। इधर मरियम का भाई आफाक बहन की परेशानी भांप गया। बहन तू क्यों इतनी चुप है, तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं आया? मरियम ने नजरें झुका ली। भाई कभी कभी दिल के ख्वाब जबान पर नहीं आ सकते। आफाक ने बहन के दिल की गहराई समझ ली। वो जानता था कि मरियम के दिल में रेहान के लिए जगह है। आफाक खुद रेहान की ईमानदारी और खामोशी का कायल था, मगर मुआशरे की दीवारें बहुत ऊंची थीं। एक शाम शमसुद्दीन ने रेहान को सख्त लहजे में बुलाया। बेटा तेरी उम्र नौकरी करने और ख़ानदान को सहारा देने की है, अब ख्वाब देखने छोड़ दे। दुनिया हकीकत पर चलती है, जज्बात पर नहीं। रेहान ने आहिस्ता से कहा, अब्बा अगर ख्वाब ही ना हो तो जीने का सहारा भी कहाँ रहता है। शमसुद्दीन गुस्से में उठ खड़े हुए। बेकार बातें ना कर, मैंने जो कहा है वही होगा। रेहान के अंदर जैसे सारी दुनिया टूट गई। रात को जब सब सो गए, मरियम ने खिड़की के पास खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह अगर मेरा नसीब रेहान के साथ लिखा है तो उसे मेरे लिए आसान कर दे, अगर नहीं तो मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं तेरे फैसले को खुशी से कबूल कर सकूं। उसकी आंखों से बहते आंसू गवाह थे कि दिल के अंदर कितना तूफान है। इसी दौरान कामरान का अपना लालच सामने आने लगा। वो एक अमीर लड़की के पीछे था। रेहान से अक्सर कहता, यार मोहब्बत पेट नहीं भरती, दौलत हो तो सब कुछ है। रेहान को हैरत होती कि कैसे दो दोस्तों की सोच इतनी मुख्तलिफ हो सकती है। वो चाहता था कि दिल के सुकून और दुआ की ताकत पर यकीन रखे, जबकि कामरान सिर्फ दुनियावी चमक धमक को हकीकत मानता था। कस्बे की गलियों में अब मरियम के रिश्ते की बात ज़बान ज़दे आम थी। औरतें हंसती बातें करतीं, मर्द सरगोशियां करते, हर किसी के पास एक राय थी, मगर किसी को मालूम ना था कि मरियम और रेहान के दिल किस कर्ब से गुजर रहे हैं। रेहान रात को छत पर खड़ा सोचता, क्या दुआ हकीकत को बदल सकती है या ये सब मेरी खाम ख्याली है। एक शाम मरियम मोहल्ले से गुजर रही थी। अचानक सामने से रेहान आता दिखाई दिया। दोनों लम्हा भर के लिए रुके, मगर अल्फाज जबान पर ना आ सके। आंखों में वो सब कुछ था जो लबों तक नहीं पहुंच पाया। रेहान ने हिम्मत करके पूछा, खैरियत है? मरियम ने जवाब दिया, जी सब ठीक है, बस इतना सा मुकालमा हुआ और दोनों आगे बढ़ गए। मगर दिलों में तूफान था। मरियम के कदम कांप रहे थे और रेहान का दिल चीख रहा था। घर पहुंचकर मरियम की मां ने उसकी थकी हुई हालत महसूस की। बेटी, मैं जानती हूं कि ये रिश्ता तुझे भारी लग रहा है, मगर याद रख, माँ बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। मरियम ने माँ की आंखों में देखकर कहा, अम्मा दुआ करें, अल्लाह मुझे वही नसीब दे जो मेरे लिए बेहतर हो। फातिमा बेगम ने बेटी को तसल्ली दी। उनकी अपनी आंखें भी नम हो गईं। इधर जरीना बेगम ने अपने कमरे में आंखें बंद करके हाथ उठाए। या अल्लाह मेरे बेटे के नसीब में वही लिख दे जो उसके दिल को सुकून दे। अगर मरियम ही उसका मुकद्दर है तो रास्ते आसान कर दे, अगर नहीं तो उसे इतनी हिम्मत दे कि वो सब्र कर सके। रेहान कोने में खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके दिल को माँ की दुआओं ने थाम लिया। एक दिन आफाक रेहान से मिला। रेहान भाई, मुझे एक बात कहनी है। रेहान ने चौंक कर कहा, हाँ कहो। आफाक ने गहरा सांस लिया। मेरी बहन के दिल में आपकी जगह है, मगर हालात हमारे काबू में नहीं। मैं चाहता हूं कि आप हिम्मत ना हारें। शायद अल्लाह के फैसले में वही लिखा हो जो आप चाहते हैं। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने आफाक का हाथ थाम लिया। शुक्रिया आफाक, ये बात मेरे लिए सबसे बड़ी तसल्ली है। कामरान को ये सब जानकर गुस्सा आ गया। रेहान, ये सब फालतू बातें हैं। तू समझता है कि आफाक या मरियम तेरे लिए कुछ कर लेंगे? दुनिया सिर्फ ताकत और दौलत को सलाम करती है। अगर तूने आगे बढ़ना है तो पैसा कमा, वरना ख्वाब देखना छोड़ दे। रेहान ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, रेहान, मेरे लिए दुआ सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पैसा चाहिए, मगर दिल के सुकून के बगैर वो कुछ नहीं। कामरान हंस गया और तंजिया अंदाज में बोला, ठीक है, अपनी खामोश दुआओं के सहारे बैठा रह। मरियम के रिश्ते की बात अब तकरीबन तय हो रही थी। कस्बे की औरतें नई नई बातें करने लगीं। शहर के लोग हैं, जहेज अच्छा मिलेगा, लड़की की किस्मत खुल गई।
वगैरह वगैरह। मगर कोई ये ना जान सका कि मरियम की आंखों की चमक दिन ब दिन मध्यम हो रही थी। रेहान अक्सर दूर से उसे देखता और दिल में एक ही दुआ करता, या अल्लाह, अगर वो मेरी नहीं तो कम से कम खुश ज़रूर रहे। रेहान की रातें आप जागते जागते गुजरती। वो छत पर खड़ा सितारों को देखता और ख़ुद से सवाल करता, क्या मेरी दुआएं आसमान तक पहुंचती हैं? क्या अल्लाह मेरी खामोशी को सुनता है? फिर माँ की बात याद आती, खामोश दुआएं सबसे ताकतवर होती हैं। मरियम ने एक रात तहज्जुद में दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरा और रेहान का नसीब एक है तो हमें मिला दे, अगर नहीं तो मुझे सब्र दे। दुआ के बाद उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा, जैसे अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली हो। कुछ दिन बाद फातिमा बेगम को फ़ोन आया कि रिश्ता अचानक तोड़ दिया गया है। ख़ानदान में किसी ने शर्तें ऐसी रख दी जो फातिमा बेगम के लिए पूरी करना मुमकिन न थी। मोहल्ले की औरतों ने बातें बनाई, शायद किस्मत को ये मंजूर न था। देखते हैं अब क्या होता है। रेहान ने यह खबर सुनी तो दिल में शुक्र अदा किया, मगर ज़बान से कुछ न कहा। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, शायद दुआओं ने एक रास्ता खोला है। कस्बे में जैसे ही ये खबर फैली कि मरियम का रिश्ता टूट गया है, हर जबान पर नई बातें आने लगीं। औरतें सरगोशियां करने लगीं, लड़की के नसीब में कुछ खोट है, शायद खानदान वालों को कुछ पसंद ना आया हो, अल्लाह बेहतर करे। ये सब सुनकर फातिमा बेगम को बहुत परेशानी हुई, मगर उन्होंने अपने अंदर का खौफ बेटी पर जाहिर ना होने दिया। बेटी, ये सब अल्लाह का फैसला है, यकीन रख, इसमें भी बेहतरी है। मरियम ने खामोशी से सर झुका दिया। उसके दिल में जैसे एक बार फिर रोशनी जाग उठेगी। रेहान जब यह खबर सुनकर माँ के पास गया तो उसकी आंखों में बरसों बाद चमक दिखाई दी। माँ, शायद दुआ ने असर दिखा दिया। जरीना बेगम ने बेटे का हाथ थामा और आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी खाली नहीं लौटते, मगर अभी सब्र से काम लेना, हर बात का वक्त मुकर्रर है। रेहान ने पहली बार अपने दिल को सुकून में डूबा महसूस किया। मगर दूसरी तरफ शमसुद्दीन को यह बात नागवार गुजरी। मोहल्ले भर में लोग बातें कर रहे हैं, अगर अब किसी ने तुझे और मरियम को जोड़ा बनाकर बातें शुरू कर दी तो खानदान की नाक कट जाएगी। रेहान ने आहिस्ता से कहा, अब्बा, अगर मरियम और मैं एक दूसरे को चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? शमसुद्दीन गुस्से से खड़े हो गए। बुराई नहीं है, मगर मेरे उसूल हैं। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता जिसका पहला रिश्ता टूट चुका हो। रेहान परेशान हो गया, मगर उसने खामोशी इख्तियार की। कुछ दिन बाद आफाक रेहान से मिला। आफाक भाई, मेरी बहन के लिए जो कुछ आप महसूस करते हैं मैं जानता हूं, मगर आपको कदम बढ़ाना होगा। दुनिया की बातों से डर कर पीछे हट गए तो फिर कभी कुछ हासिल ना होगा। रेहान ने अफसुर्दगी से जवाब दिया, आफाक, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे बाप की मर्जी के बगैर ये सब नामुमकिन है। आफाक ने गहरा सांस लिया। फिर दुआ मांगते रहिए, अल्लाह के लिए कोई भी नामुमकिन नहीं। मरियम पर मोहल्ले की औरतों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्यों रिश्ता टूट गया? लड़की में कोई कमी है क्या? ये जुमले उसके दिल को छेदने लगे। वो रातों को जागती और अल्लाह के हुजूर गिर कर कहती, या अल्लाह, मैंने कभी बुरा नहीं चाहा, मुझे इतनी हिम्मत दे कि इन तानों को सह सकूं। उसकी आंखों से बहते आंसू ही उसके दिल का हाल बयान करते थे। कामरान ने रेहान से कहा, देख, अब मौका है, जाकर मरियम से बात कर या उसके घर वालों से बात कर, वरना कल कोई और रिश्ता आ जाएगा। रेहान ने नफी में सर हिलाया, मैं अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठा सकता। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो सब कुछ खुद ब खुद आसान हो जाएगा। कामरान हंसने लगा, तो अपनी जिंदगी को खामोश दुआओं के सुपुर्द करके कुछ नहीं पाएगा, वक्त हाथ से निकल जाएगा। रेहान ने संजीदगी से जवाब दिया, कामरान, मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी है, जो उसकी मर्जी है वही होगा। कस्बे में ईद का त्यौहार करीब आ रहा था। गलियां चिरागों और रोशनियों से सजने लगीं। बच्चे खुशी से भागते, औरतें खरीदारी में मसरूफ। मगर इस सब हलचल में मरियम और रेहान के दिल अब भी सकूत में थे। ईद की शाम मरियम की आंखों में आंसू थे। वो दुआ मांगते हुए कह रही थी, या अल्लाह, मेरी खुशियां मेरी माँ के चेहरे पर लिख दे। उसी वक्त रेहान अपनी छत पर खड़ा सितारों को देख रहा था। वो दिल ही दिल में कह रहा था, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, और अगर मेरी दुआएं तेरी बारगाह में मकबूल हैं तो मुझे वो सुकून अता कर जो मैं बरसों से तलाश कर रहा हूँ। चंद दिन बाद अचानक खबर फैली कि मरियम के लिए एक और रिश्ता आया है। इस बार रिश्ता शहर के एक मुअज़्ज़िज़ मगर मगरूर ख़ानदान से था। मोहल्ले में फिर सरगोशियाँ शुरू हो गईं। फातिमा बेगम तज़ब्ज़ब में थीं। मरियम का दिल फिर बोझल हो गया। आफाक ने सख्ती से कहा, अम्मा, ये रिश्ता ठीक नहीं, ये लोग गुरूर में डूबे हुए हैं, मेरी बहन इनके साथ खुश नहीं रहेगी। फातिमा बेगम ने सोचते हुए कहा,
बेटा मगर ज़माना तो यही कहता है कि ऐसी जगह शादी करनी चाहिए जहाँ दुनिया तारीफ करे। मरियम ने आहिस्ता से कहा, अम्मा दुनिया की नहीं अल्लाह की मर्जी की फिक्र कीजिएगा। रेहान ने जब ये खबर सुनी तो उसका दिल दहल गया। वो रात भर दुआ मांगता रहा। जरीना बेगम ने बेटे की आहोजारी सुनी तो उनकी अपनी आंखें भर आईं। वो भी बेटे के साथ हाथ उठाकर दुआ करने लगी। मरियम के लिए आए नए रिश्ते की बात मोहल्ले भर में मौजूए गुफ्तगू बन गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा ये रिश्ता बहुत अच्छा है, कुछ ने गुरूर और तकब्बुर की वजह से बुरा कहा। रेहान ये सब सुनकर तड़प रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह अगर ये फैसला मेरे हक में नहीं तो इसे खुद ही रोक दे। उधर शमसुद्दीन ने रेहान को बुलाया। देख बेटा ये सब फजूल ख्वाब छोड़ दे। मरियम के लिए जो रिश्ते आ रहे हैं वो हमसे बड़े घरानों के हैं, हमें उनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। रेहान ने पहली बार बाप की आंखों में देखकर कहा, अब्बा क्या इज्जत सिर्फ दौलत वालों के पास है? क्या मोहब्बत और नेक नियति की कोई कीमत नहीं? शमसुद्दीन लम्हा भर को खामोश हो गए। उनके दिल को बेटे की बात छू गई, मगर जिद उनके चेहरे पर छाई रही। जिंदगी जज्बात पर नहीं चलती। रेहान ने दिल में कहा, जिंदगी दुआ पर भी चलती है अब्बा। मरियम पर एक बार फिर बोझ बढ़ने लगा। औरतें फिर सवाल उठाने लगी, लड़की के नसीब में शायद खुशियां नहीं, देखो फिर रिश्ता आया है, अब ये टूटा तो मुश्किल होगी। मरियम की रातें फिर दुआओं में गुजरती, या अल्लाह मुझे वही दे जो मेरे लिए बेहतर है, मगर मेरी माँ को इन तानों से बचा ले। आफाक ने एक दिन अपनी माँ फातिमा बेगम के सामने कहा, अम्मा मैंने सोच लिया है, मेरी बहन की खुशी रेहान में है, मैं चाहता हूँ कि आप उसके घर जाकर बात करें। फातिमा बेगम हैरान रह गईं, बेटा लोग क्या कहेंगे? आफाक ने एतमाद से कहा, अम्मा लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, मगर खुशियाँ अल्लाह देता है, लोग नहीं। फातिमा बेगम ने गहरा सांस लिया। उनके दिल में भी यही ख्वाहिश थी, मगर वो डर रही थी। कुछ दिन बाद जरीना बेगम के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर फातिमा बेगम खड़ी थीं। दोनों औरतों की आंखों में नमी और दिल में सुकून था। फातिमा बेगम ने आहिस्ता से कहा, बहन मैं सीधी बात करती हूँ, मेरी बेटी मरियम और आपका बेटा रेहान, अगर अल्लाह को मंजूर हो तो मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता तय हो जाए। जरीना बेगम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआएं कबूल हो गईं। जरीना बेगम ने जब ये बात शमसुद्दीन के सामने रखी तो वो भड़क उठे। ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा था कि नहीं, मैं अपने बेटे की शादी इस खानदान में नहीं करेंगे। रेहान खामोश खड़ा था, मगर उसने हिम्मत की और बाप से कहा, अब्बा आपने हमेशा मुझे सुकूत में जीना सिखाया, मगर आज मैं अपनी दिल की बात कहे बगैर नहीं रह सकता। मैं मरियम के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर आपने मुझे अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलने पर मजबूर किया तो मेरा दम घुट जाएगा। शमसुद्दीन लम्हा भर के लिए साकित हो गए। उनके सामने बेटे की आंखों में वो सच्चाई थी जो बरसों की खामोशी के बाद उभरी। जरीना बेगम ने आहिस्ता से कहा, खामोश दुआओं की ताकत को हल्का मत लीजिए, ये फ़ैसला अल्लाह का है, हमारा नहीं। शमसुद्दीन की खामोशी बता रही थी जैसे बरसों की ज़िद एक लम्हे में टूट गई हो। ठीक है, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मुझे मंजूर है। ये खबर मोहल्ले में फैल गई। लोग हैरान भी हुए और खुश भी। कुछ ने कहा बिलाखिर कर नसीब ने मिलाया, कुछ ने दुआ दी अल्लाह दोनों को खुश रखे। रेहान ने पहली बार दिल खोलकर शुक्र अदा किया। उसने कहा, या अल्लाह तूने मेरी माँ की खामोश दुआओं को रंग बख्शा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मरियम ने भी दुआ की, परवरदिगार तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया, मुझे अपनी रज़ा पर कायम रख। मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद में निकाह हुआ। चरागान, हल्की हवा और कुरान की आयात की गूंज माहौल को पुरसुकून बना रही थी। रेहान और मरियम की आंखों में बरसों की दुआओं का सुकून था। जरीना बेगम के आंसू ख़त्म ही ना होते रहे। वो बार बार कहती रहीं, देखा बेटा, खामोश दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। शमसुद्दीन भी एक कोने में बैठे बेटे को देख रहे थे। उनके दिल में नरमी और सुकून उतर आया। रेहान और मरियम की ज़िंदगी नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ने लगी। दोनों जानते थे कि मुश्किलात आएंगी, मगर दुआ और यकीन के सहारे सब आसान हो जाएगा। रेहान अक्सर मरियम से कहता, याद है तुम कहती थी कि दुआ कभी रद्द नहीं होती, आज मुझे यकीन आ गया है कि खामोश दुआएं सबसे बड़ी ताकत हैं। मरियम मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ रेहान, अल्लाह ने हमारी दुआओं को सुना और यही हमारी असल कामयाबी है। कहानी खामोश दुआएं हमें ये सिखाती है कि दुआ इंसान के दिल का सबसे बड़ा सहारा है। दुनिया और लोग चाहे कुछ भी कहें, मगर अल्लाह के फैसले सबसे बेहतर होते हैं। रेहान और मरियम की मोहब्बत, जरीना बेगम की दुआएं और सब्र का फल आखिरकार कबूलियत की सूरत में मिला।